Good morning, students. Today we are going to discuss the next topic that is related with the determination of order of reaction by using initial rate method. In the last lecture we have discussed how to find out the order of reaction by using graphical method. Thereafter we have done integrated rate equation method, in which we have to find out the value of rate constant. Thereafter we can apply the integrated rate equation, we can find out the value of rate constant and we can compare the values of a rate constant. Then next method है, that is initial rate method, and in this method initial rate method, and see what will happen in this method. We will determine the rate of reaction with respect to the each reactant. What we have to do, we have to determine the rate of reaction, we have to determine the order of reaction with respect to each reactant, and thereafter we will add those powers. ठीक है, we have studied the order of reaction. order of reaction की अगर बात करें हम, rate of reaction किसके इक्वल था? rate of reaction was equal to, suppose we have reactants A, B, raised to power P, raised to power Q, and here order of reaction was equal to sum of powers P and Q. See, in case of initial rate method, what we have to do, we have to determine the rate of reaction or order of reaction with respect to A, order of reaction with respect to B, and thereafter we will add these powers. जैसे हमारे पास यहाँ पे A raised to power P आ रहा है, B raised to power Q है, so order of reaction जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे? sum of powers, that will be equal to P plus Q. So in case of initial rate method we have to determine the value of these powers. इन powers की value हमें determine करनी है, P और Q की value जो है वो हमें determine करनी है by using initial rate method. आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होगा. ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है, बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से क्या इफेक्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना ऑब्जर्व हो रहा है. ठीक है, उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये सिमिलर है जिस तरह से आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती थी इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, सो वहां पे आपको आप क्या करते थे? जैसे x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते थे, वैसे ही यहाँ पे हमने p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, हियर आई एम कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल इज a numerical, and by using this numerical we will find out the order of a reaction. So let's start with the numerical. So the question is, the following data were obtained for the reaction and the reaction is 2NO plus Br2 give rise to 2NOBr, and जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो ऑब्टेन हो रहा है इसके केस में, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, ठीक है, एंड हियर वी हैव concentration of NO, concentration of Br2 and rate of reaction.
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा जो गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है मोल पर लीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर, सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास इसके यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.10, 0.20 and here concentration is 0.30 and here the concentration of bromine is 0.10, 0.10 and 0.2030 and rate of reaction is 1.3 into 10 raised to power minus 6, 5.2 into 10 raised to power minus 6 and 1.56 into 10 raised to power minus 6. ठीक है, तो यहां से हम इक्वेशंस फ्रेम कर लेते हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन should be equal to rate constant K into NO raised to power P into Br2 raised to power Q. ठीक है, जो जनरली हमारे पास रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट में हमारे पास NO, P और Q का हमें पता नहीं है, जो भी पावर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें पावर्स जो डिटरमाइन करनी है। तो यहां से मैं इक्वेशंस जो फ्रेम कर लेता हूं, डिफरेंट इक्वेशंस मेरे पास बन रही हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास गिवन है 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू NO रेज टू पावर P। अब NO की कॉन्सेंट्रेशन में पुट कर दो, यहाँ पे कितनी है 0.10 रेज टू पावर P एंड 0.10 रेज टू पावर Q। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखो 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू 0.20 रेज टू पावर P इंटू 0.10 रेज टू पावर Q, और ये आ गई आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बन रहे, 1.56 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, नॉट माइनस 6, इट इज माइनस 5 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू 0.30 रेज टू पावर P इंटू 0.30 रेज टू पावर Q, और ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब कंपेयरिंग सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एंड व्हाट वी आर डूइंग, सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे पहला स्टेप क्या आ गया हमारे पास, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 0. K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.20 रेज टू पावर P इंटू 0.10
raised to power q divided by 0.10 raised to power p and 0.10 raised to power q, ये आ जाएगा। ठीक है, 1.3 10 raised to power -6 से 10 raised to power -6 कैंसल आउट हो गया, 1.3 4 आ जाएगा, 4 आ गया, इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, 0.10 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये 2 raised to power p बन जाएगा, 2 बिकॉज 10 to the 20, 2 raised to power p, ठीक है, इज इक्वल टू 4 और यहां पे इसको कंपेयर करके हमारे पास जो p की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से हमने किसकी वैल्यू डिटरमाइन कर ली, p की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर ली। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा वो क्या करना है, आपने जो थर्ड इक्वेशन है उसको सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप बन जाएगा आपके पास, व्हाट यू विल राइट, डिवाइडिंग थर्ड इक्वेशन बाय 2 वी विल गेट। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को जब वो सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, डिवाइडिंग equation 3 by equation 2 we get, so here you will observe 1.56 into 10 raised to power -5 divided by 5.2 into 10 raised to power -6 is equal to 0.30 raised to power p divided by 0.20 raised to power p, and another thing which we have here 0.30 raised to power q divided by 0.10 raised to power q. See, make one correction here. Here we have value 0.20. So ये तो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको कट किया तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 3 is equal to 3 raised to power q and from here q is equal to 1। तो यहाँ पे हमने पावर से वो डिटरमाइन कर ली। p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 एंड q की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है। एंड अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट k इंटू NO रेज टू पावर 2 आ जाएगा एंड नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है दैट इज Br2 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO, order of reaction with respect to NO is equal to 2 and order of reaction with respect to Br2 is equal to 1 and overall order of reaction की अगर बात करें, overall order of reaction is equal to sum of powers that is 2 plus 1 is equal to 3। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, ये P प्लस Q आप ऐड कर दोगे 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो वो 3 आ रही है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO आ रहा है 2
order of reaction with respect to Br2 or I1. ठीक है. So in this way you will solve such kind of numericals. So students, these were the major methods which are generally used to find out the order of a reaction. ग्राफिकल मेथड हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड हो गया, और ये जो हमने अभी स्टडी किया इनिशियल रेट लॉ मेथड जो है ये भी यूज किया जा सकता है. एंड बिसाइड दिस और जो मेथड यूज किए जा सकते हैं वो है जैसे ओस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड है, ओस्टवर्ड्स मेथड है, या फिर हाफ लाइफ पीरियड मेथड है, वो भी जो है वो जनरली यूज किया जा सकता है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है. सो नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन आते हैं वो है जैसे pseudo chemical reactions, pseudo chemical reactions. So what are pseudo chemical reactions? Pseudo chemical reactions, these are the reactions, these are the reactions which appear to follow higher order kinetics, which appear to follow higher order kinetics, but actually follows lower order kinetics. ठीक है. तो ऐसे रिएक्शंस हैं जो अपीयर तो होंगे कि ऐसा फॉलो कर रहे हैं जैसे कि हायर ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स जो वो फॉलो करेंगे. सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्यूडो केमिकल रिएक्शन. स्यूडो मींस फॉल्स. सो इन केस ऑफ स्यूडो केमिकल रिएक्शंस, one or more reactants may be present in excess and the rate of reaction will be independent of change in concentration of that reactant which is present in excess. So here we have pseudo unimolecular reactions, pseudo unimolecular reactions. ठीक है. अगर इन रिएक्शंस की बात करें, so these would be the reactions or these are the reactions, these are the reactions which appears to follow higher order kinetics but actually they will follow first order kinetics, which appear to follow higher order kinetics, but they actually follow first order kinetics. ठीक है. So such kind of reactions are known as pseudo unimolecular reactions. ठीक है. इस तरह के reactions के एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पे आ जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर. ठीक है. तो कोई भी एस्टर में जैसे यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, सपोज आई हैव इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इथाइल एसीटेट. ठीक है. जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है
तो हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड एंड अनदर प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल. एंड अनदर प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल. ठीक है. So here rate of reaction के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखें, rate of reaction should be equal to rate constant K into concentration of ester into concentration of water. ठीक है. और rate of reaction should be equal to rate constant K into concentration of CS3, COO, C2H5, this is ethyl acetate, और दूसरा क्या है आपके पास, वाटर. ठीक है. बट हियर वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस. इस रिएक्शन में जो वाटर है दैट विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस. वाटर कैसे प्रेजेंट होगा, वाटर विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस. वाटर का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा यहाँ पे. As water is present in excess, so change in concentration of water will not alter the rate of reaction. Again listen, change in concentration of water will not alter the rate of reaction. Water की concentration में अगर change हो रहा है, क्योंकि ज्यादा amount में present है, तो इसकी concentration में अगर change हो भी रहा है, that will not be observable. ठीक है, due to the presence of a excess amount of water. So here the rate of reaction will depend only on the concentration of one species, that is, or on the concentration of only one species, that is ester, and it will be independent of change in concentration of water. Hence the reaction will follow first order kinetics. एक ही reactant की species के ऊपर जो है वो rate of reaction जो वो depend कर रहा है, that is why the reaction will follow first order kinetics. ठीक है. So such kind of reactions are known as pseudo unimolecular reactions. Pseudo unimolecular reactions में क्या होगा, जो reaction है it will appear to follow higher order kinetics, but actually it will follow lower order kinetics. It will follow first order kinetics. Unimolecular के केस में क्या हो जाएगा, first order kinetics आ जाएगी. And such kind of reactions are known as pseudo first order reactions or pseudo unimolecular reactions. ठीक है. हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर जो है इसमें हमने एग्जांपल कंसीडर किया. वाटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस. यहाँ पे एक जो रिएक्टेंट है वो कैसे प्रेजेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज हो भी रहा है, सो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट will not alter the rate of reaction as it was present in excess. ठीक है. ये रिएक्टेंट जब एक्सेस में प्रेजेंट था, इस वजह से ये rate of reaction को alter नहीं करेगा. So rate of reaction will depend only on the concentration of what, that ester. That is why it will follow first order kinetics. So students, next topic हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो पूछा भी जाता है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर T99.9% completion of the reaction is 10 times of T half. ठीक है. तो सबसे पहले आपके पास जो है T half in case of first order reaction. In case of first order reaction. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपको बताना है कि 99.9% कंप्लीशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ अ टी हाफ. ठीक है.
So first of all, write the expression for T half. T half in case of first order reaction, we have derived this expression and it is equal to 0.693 upon K. ठीक है? Then next is T. For T 99.9% completion, for T 99.9% completion, हमारे पास इंटीग्रेटर रेट इक्वेशन थी T is equal to 2.303 अपॉन K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले ली हमने 100% है 100 है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट 100 माइनस 99.9 कितना आ जाएगा 0.1. ठीक है. सो हियर T 99.9% is equal to 2.303 अपॉन K log 1000 हो जाएगा 0.1 1/10 10 ऊपर चला गया 1000 बन गया. T 99.9% is equal to 2.303 अपॉन K log 1000 की वैल्यू 500 करोगे कितनी आ जाएगी आपके पास ही 3 आ जाएगी. 3 log क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 500 कर दोगे 4 डिजिट है 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3. ठीक है. तो T 99.9% कंप्लीशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स आ जाएगा मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9 3 0 0 3 3 9 3 2 6 6.909 अपॉन K. ठीक है. अब दोनों को कंपेयर करो. T हाफ और T 99.9% completion upon T half is equal to क्या बन जाएगा 6.909 K upon 0.693 upon K. K से K कैंसल आउट हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट कितना आएगा 10 टाइम्स आएगा. सो T 99.9% completion is equal to almost 10 times of T half. ठीक है. 10 into T half आ जाएगा 10 times of T half आ जाएगा. ठीक है. So this we have to derive that the time required for T 99.9% completion is equal to 10 times of T half. ठीक है. तो यही हमें जो था वो डिराइव करना था. So in this way we can find out this expression. ठीक है. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. You will practice all the questions given in your book and if you are having any doubt you can send your doubts on my number. ठीक है. Thank you.